ہم غریب لوگ بھی کتنے قسمت والے ہوتے ہیں نا، ہماری تمام خواہشات بھی ہماری طرح غریب ہوتی ہیں، ہماری طرح ڈرتی رہتی ہیں کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، اور پھر جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ان سے آنسو بہا لیے اور پھر سکون آ گیا۔ خوشی بھی ہمیں جب چاہیے ہو تو اس وقت نہیں ملتی، لیکن جب بھی ملتی ہے اس کو انجوائے اس بچے کی طرح کرتے ہیں جس کو اس کی من چاہی چیز مل جاتی ہے۔ میرا نام طارق ہے، میں غریب ہوں کیونکہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میرے باپ محمد طاہر نے اب 2 کی بجائے 3 کے لیے کمانا شروع کر دیا۔ اولاد کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، پر محمد طاہر اور خالدہ بیگم کو دونوں کو اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بس پھر یہ سمجھیں کہ میں زبردستی ہی خالدہ بیگم کی گود میں آ گیا۔ میرے آنے سے دونوں خوش نہیں تھے، بلکہ اور پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے ہی دونوں کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن آنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ بس جس نے آنا ہوتا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے۔ عام بچوں کی طرح مجھے بھی 3 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد داخل کروا دیا گیا، اور پھر جب میں نے 20 پارے پڑھ لیے تو ساتھ ساتھ ایک کار میکینک کی دکان پر لے جانا شروع کر دیا۔ بہت کم عرصے میں نے 3 بار قرآن کا ناظرہ مکمل کیا، اور دوسری طرف میرا قدم اس دکان میں ایسا مبارک ثابت ہوا کہ 2 ماہ کے اندر اندر چھوٹی سی دکان کی جگہ میرے استاد نے بڑی سی ورک شاپ بنا لی، اور پھر استاد نے دکان کو فروخت کر دیا۔ اب تو ہمارے پاس ایک دکان میں اتنا کام آ جاتا تھا کہ بندے کم پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے استاد نے 4 مکینک اور رکھ لیے۔ میں نے سال کے اندر قرآن پاک حفظ کیا اور مکمل طور پر ورک شاپ پر کام کرنے لگ گیا۔ استاد نے میرا 4000 ہفتہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جس دن میں 4000 گھر لے کر شام کو آیا تو میرے والدین اتنے خوش ہوئے جیسے ان کو عید کا چاند نظر آ گیا ہو۔ اماں نے میری پیشانی چومی، پھر ہم نے انڈوں کے سالن کے ساتھ روٹی کھائی اور مارکیٹ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بازار میں خوب رونق تھی، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ میں تو حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے، جبکہ خالدہ بیگم کے منہ میں تو انگلی آ گئی۔ وہ ہر دکان پر جاتی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھتیں، چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کرتیں۔ ایک دکان میں جب میں پرفیوم لینے گیا تو وہاں رکھے ہوئے نکلی پھولوں کو دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئی تھیں جیسے انہیں کوئی قیمتی چیز مل گئی ہو، اور پھر میرے کان میں کہنے لگیں، تم بھی یہ 2 پھول لے لو، ہم اپنے کمرے میں رکھیں گے۔ یہ کوئی پہلی چیز تھی جو ان کے دل کو لگی تھی، اور پھر ہم دکان سے باہر آ گئے۔ ہمارا تو واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آخر کار ابا جی نے ہمیں واپس گھر چلنے کو کہا، اور پھر ہم نے واپسی پہ 200 کے کیلے لے لیے اور رکشے پر بیٹھ کر اس کے چلنے کا انتظار کرنے لگ گئے۔ پریشانی دکھ اور تکلیف کا دوسرا نام ہے، اگر کوئی آج خوش ہے تو کل کو وہ بھی پریشان ضرور ہوگا۔ یہ جملے کسی فرض کی طرح یاد تھے، کیونکہ میں دکھ اور پریشانیوں سے تو گزر رہا تھا، لیکن مجھے اچھے وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ وقت آئے اور میں اس کا خوب فائدہ اٹھاؤں، لیکن ہم امید لگا سکتے ہیں، اس وقت کو کھینچ کر اپنے پاس نہیں لا سکتے۔ معمول کے مطابق میں آج صبح اٹھا اور ناشتے کے بعد 9 بجے ورک شاپ پہ گیا۔ آتے ہی ساری ورک شاپ کی صفائی کی، وضو کر کے ورک شاپ کے مرکزی دروازے کے سامنے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، ہمیشہ کی طرح تلاوت کرنے لگ گیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں نے جب منہ پیچھے کر کے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ایسا مسکرایا کہ جیسے میرے سامنے پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہو، اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ بھی مسکراتے۔ اس وقت میرے سامنے میرا ہاتھ پکڑے ایک خوبصورت حسینہ کھڑی تھی، جس کے ہلکے گولڈن بال ہوا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہم دونوں پتہ نہیں کتنی دیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ اسی وقت ہماری ورک شاپ کے 2 کاریگر مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے دیکھ کر حیرت سے ان کے منہ میں انگلی آ گئی۔ خوبصورت تو میں بھی بہت تھا، مگر مسئلہ میرا ایک ہی تھا، اور وہ تھا غربت، اور وہ لینڈ کروزر لے کر آئی تھی۔ ماجد رحمان کی حیرت اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم چند منٹوں میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ ماجد رحمان کو دیکھ کر اس خوبصورت حسینہ نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ جدا کیا۔ مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پھولوں والے باغ سے ایک دم تپتے صحرا میں آ گیا ہوں۔ میں تو ان چند منٹوں میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور قریب ہو کر
कल जल्दी आने का वादा करके चली गई, जबकि मैं मरकजी दरवाजे के बाहर खड़ा काफ़ी देर तक इसकी गाड़ी को जाता देखता रहा। कभी कभी किस्मत भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है कि हमारी अकल दंग रह जाती है, लेकिन अपनी किस्मत की मेहरबानियों से कौन फ़ायदा नहीं उठाता। बस फिर मैं भी अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पर बहुत खुश हुआ और इसके साथ साथ चलने लग गया। मेरा आज का दिन बहुत ही खुशगवार रहा था। मैं बार बार इस खूबसूरत हसीना का सोचकर मुस्कुराता रहा और अपनी किस्मत पर फ़ख्र महसूस करता रहा। रात 8 बजे काम से छुट्टी हो गई तो मैं नहाकर तैयारी की और जब बाहर निकला तो दरवाजे के सामने वही सुबह वाली काले रंग की लैंड क्रूज़र मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसमें वही खूबसूरत बालों वाली हसीना बैठी थी। मुझे दरवाजे से निकलता देखकर इसने अंदर से ही दरवाज़ा खोला और मैं इसकी शानदार गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसका मालिक मैं खुद ही हूँ। मेरे बैठते ही इसने गाड़ी आगे बढ़ाई। नाम क्या है आपका हसीना जी? मैंने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा तो वो बोली, क्या रखा है इस नाम के चक्कर में साहब? कुछ बोल अपनी ज़बान से कहकर कमाल कर दें। मैंने इसके शेर पहलू वाह वाह करके इसे दाद दी। तो फिर वो बोली, मेरा नाम नसीम मुग़ल है। वैसे मुझे प्यार से मिसी कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से मुझे हसीना बहुत पसंद आया, तो आप मुझे हसीना कह सकते हो। हसीना ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। हसीना जी, काफ़ी देर हम दोनों खामोश रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को गहरी नज़रों से देखते रहे थे। आखिरकार मैंने इसे पुकारा तो इसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए ऐसे अंदाज में जी कहा कि दिल चाहा कि कुर्बान हो जाऊं। लेकिन फिर इसने एक महंगे होटल के सामने लैंड क्रूज़र को ब्रेक लगाई तो मैं हैरान रह गया। मैं तो इस होटल के सामने से गुजर भी नहीं सकता था और अब इस होटल के अंदर खाना खाना था। मेरे सीने में मेरा दिल खुशी से नाच रहा था और फिर गाड़ी से उतरकर हसीना ने मेरा हाथ पकड़ा और होटल में लेकर गई। कुछ देर गुजरने के बाद हम एक कमरे में आ गए, जहां एक तरफ बेड और इसके सामने कद आवर आईना लगा हुआ था। एक तरफ नए डिज़ाइन के सोफ़े रखे हुए थे। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। मैं 5 मिनट तक तो कमरे के मरकज़ी दरवाजे में खड़ा रहा और फिर हसीना ने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर बैठने को कहा और फिर फ़ोन पर खाने का हुक्म दिया तो 10 मिनट में खाना आ गया। मैंने तो ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था, इसलिए खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर हसीना ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया तो खाने के बाद हम दोनों देर तक कॉफ़ी पीते रहे। वैसे मुझे एक बात की परेशानी बहुत हुई कि अगर हसीना को मेरे से प्यार है तो कैसा है। इसने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और हम दोनों एक ही दिन में बहुत आगे निकल गए, जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। मामूल के मुताबिक मैं आज घर लेट पहुँचा तो अम्मा अब्बा सामना खाना रखे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो पेट भरकर हसीना के साथ खाना खाकर आया था, जिसकी वजह से मुझे दाल रोटी कहाँ अच्छी लगनी थी। बस फिर क्या, मैंने शाम की चाय भी नहीं पी। अम्मा अब्बा ने तबीयत का पूछा तो मैंने सर दर्द का बहाना किया, आंखें बंद करके लेट गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी, मैं तो नींद वाली दुनिया से बहुत आगे निकल गया था। बस यही वजह थी कि मेरी सारी रात हसीना की यादों और ख्यालों में गुजर गई। सुबह अल्लाह अकबर के साथ ही मेरी आंख खुल गई, लेकिन इसी वक्त अब्बा ने मुझे नमाज के लिए जगा दिया और फिर हम दोनों बाप बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। नमाज की हर रकत, हर सजदे और दुआ में वो शामिल रही। इसे बार बार अल्लाह पाक से मैं मांग रहा था। अभी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरा था और मेरी हालत ये थी। मैंने मस्जिद से निकलते हुए सोचा और फिर मुसलसल सोचता रहा। इसकी खूबसूरत नरम नरम हाथ, खूबसूरत आवाज़, अदाएं, वो तो ऐसी थी कि दिल कुर्बान होने को चाहे। मैंने नाश्ता किया, वर्कशॉप के लिए घर से निकल गया। ठीक आधे घंटे बाद मैं वर्कशॉप के दरवाजे के सामने ताला खोल रहा था। अभी मैंने मुकम्मल दरवाज़ा नहीं खोला था कि एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आकर रुकी और गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे हुआ तो हसीना ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलवाया। मैंने दोबारा दरवाजे को ताला लगाया और आकर गाड़ी में बैठ गया। सुबह के वक्त हर तरफ बहुत सुकून था और इस पर पुरसकून खामोशी को हम दोनों एंजॉय करना चाह रहे थे। तो फिर एक होटल से नाश्ता पैक करवाकर हम दोनों एक पार्क में चले गए। पार्क में उस वक्त काफ़ी लोग थे, लेकिन हम दोनों एक कोने में गुल और मोती के फूल के साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे तो बातों बातों में हसीना ने मुझसे वादा किया कि मुझे इसका एक काम करना है और इस काम के इनाम में वो मुझे 50 लाख रुपए देगी।
50 लाख का सुनकर मेरे दिल में जो हसीना की मोहब्बत का चिराग जल रहा था वो एकदम टूट कर बिखर गया और बस इसकी जगह लालच ने ले ली। मैंने बहुत ज़िद की कि मुझे बताएं कि क्या काम है, लेकिन हसीना भी अपनी ज़िद पर कायम रही। और फिर जब मैं 10 बजे वर्कशॉप आया तो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर सब हैरान हुए। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वर्कशॉप आऊं, लेकिन कल से जिस गाड़ी का काम शुरू किया था वो आज देनी थी। नहीं तो मैं 50 लाख का सोच सोच कर खुश था। आखिरकार मैंने 2 घंटे लगाकर गाड़ी ठीक की तो इसी वक्त इसका मालिक आ गया। मैंने गाड़ी इसके हवाले की और उस्ताद से सर दर्द का कहकर छुट्टी लेकर घर आ गया। घर आते ही अम्मा से खाने का कहा और खुद घर के छोटे से सहन में पड़ी चारपाई पर लेटकर आसमान की तरफ देखकर सोचने लग गया कि आखिर मैं 50 लाख का क्या करूँगा। सर मेरी इस लड़के से डील हो चुकी है, नसीम ने अपने बॉस के सामने फाइल रखते हुए कहा तो इसका बॉस मुस्कुराया और फाइल खोलकर देखने लग गया था। वो जैसे जैसे फाइल देख रहा था इसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी और फिर इसने हंसते हुए फाइल बंद की और गुड कहकर कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस के दरवाजे को लॉक लगाकर आया और नसीम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नसीम, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तुम पर। मैंने बहुत हिम्मत वालों को देखा है, वो डर कर भाग जाते हैं और तुमने तो एक ही दिन में अपना काम तमाम कर दिया। बस अपना काम होते ही पिस्टल से इस लड़के को ऊपर भेज देना, बाकी तुम्हारे साथ क्या करना है वही होगा जो तुम चाहोगी। नसीम के बॉस ने इसे सारी तफसील बताई और इसका हाथ पकड़कर अपने दाएं हाथ की उंगली इसके हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चलाने लग गया। तो नसीम ओके सर कहती जल्दी से उठकर दरवाजे को लॉक करके बाहर निकल गई। किसी के जज्बात से खेलने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अब तो हमारे यहाँ यही मामूल बन चुका है। हम दूसरों को मोहब्बत प्यार के जाल में उलझा कर अपना मतलब से काम लेते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि सच आखिर सच ही रहता है, जबकि झूठ तो पकड़ा जाता है। और जब ये पकड़ा जाता है तो फिर इंसान कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। सूरज गरूब हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त मैं नसीम के साथ कल वाले होटल में इसके सामने बैठा खाना खा रहा था। तब इसने मुझे एक फ़ाइल दी जिसके शुरू में 2 मदरसों के एड्रेस ऐड थे और फिर इस फाइल के 3 सफ़हात पर 20 बच्चों की तस्वीरें थीं। मैंने फ़ाइल देखी तो मैं समझ गया था कि नसीम किसी माफिया से है और इसे जितना बचा जाए बेहतर है। मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से फ़ाइल नसीम को दी और उठकर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा होता देखकर नसीम ने पूछा, हीरो तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे बिन ये फ़िल्म नामुकम्मल है, इस फ़िल्म को तेरी ज़रूरत है। नसीम ने फ़ाइल मेज़ से उठाई और भागते हुए मेरे सामने आकर कहा तो मेरे कानों में इसकी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह लगी। मैंने गुस्से में नसीम का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूँ हीरो, और किसे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हीरो देख, ड्रामा ना कर। मुझे ये 20 बच्चे चाहिए और ये जब आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, वादा रहा। इसके साथ तुम्हें 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये बात करते हुए इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने इसकी 2 उंगलियां पकड़कर मरोड़ी। नसीम ने खूब शोर मचाया। काफ़ी सारे लोग जमा हो गए। मैंने एक बंदे से फ़ोन लिया, पुलिस को कॉल की तो 10 मिनट बाद होटल के सामने पुलिस आ गई और नसीम को मैंने गिरफ्तार करवा दिया। रातों रात नसीम ने अपने तमाम साथी भी पुलिस के साथ मिलकर पकड़वा दिए। अगले दिन जब मैं नसीम से मिलने जेल गया तो इसने मुझे सारी कहानी बताई कि वो मजबूर थी। मुझे तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि ये माफिया बड़े अफसरों के बच्चे अगवा करना चाहता था ताकि बाद में इन बच्चों के वालिदैन से भारी रकम वसूल की जा सके, लेकिन तुमने अपने वतन से वफा की और इस खतरनाक गिरोह को हमारे सामने पेश किया। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो और हमारे वतन को तुम जैसे नौजवानों की ही ज़रूरत है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इस खुशी में कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि मेरी इतनी तारीफ़ आज तक किसी ने नहीं की थी। और वैसे भी मुझे लगता था कि ज़मीन पर मैं बोझ हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। और एक बार फिर से नसीम के पास गया तो वो कहने लगी, हीरो तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है, सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और वैसे भी मैंने तेरा फ़ायदा सोचा था, तू अमीर हो जाएगा, लेकिन नहीं, तू इस काबिल ही नहीं है। मैंने नसीम की तरफ मुस्कुराकर देखा और इसको कहा कि मेरे दिल में कुरान पाक जैसी अनमोल दौलत महफूज है। मुझे दुनियावी दौलत से कोई गर्ज नहीं। मैं गरीब हूँ तो गरीबी सही, क्योंकि गरीब के दिल में एहसास होता है, जबकि अमीर के दिल में दौलत की हवस होती है जो सिर्फ पैसा मांगती है, और इस पैसे की खातिर वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसी अमीरी से मैं बाज आया। ये कहते हुए मैं वहाँ से चल दिया।